Namaskar दोस्तों, welcome to my channel BrainX Academy. In the last session, we have covered the concept of money, the evolution of money and the definitions of money. Now in today's session, we are going to start the types of money. So let's get started. Animal money. In the proto-historic period, animals were used as money such as sheep, goat, etc. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम एनिमल्स को यूज करते थे मनी के लिए. नेक्स्ट इज कमोडिटी मनी. ड्यू टू इनडिविजिबल नेचर ऑफ एनिमल्स, people started using commodities as money, such as animal skins, grains, shells, feathers, tusks, salt, rare articles and stones. क्या है, एनिमल्स का नेचर है वो इनडिविजिबल रहता है. Means you cannot divide the animal, you cannot make pieces of that animal, so it was very difficult to use it as a money. So people started using the commodities. कौन से एनिमल स्किन्स, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर्स, टस्क, सॉल्ट, इतने सारे कमोडिटीज हम मनी के लिए यूज करते थे. नाउ नेक्स्ट इज मेटालिक मनी. Due to the problem of storage of the above mentioned commodities, metallic money came into existence. Durable metals such as gold, silver, copper, aluminium, nickel, etc. were used as money. क्या होता था कि there was a problem of storage. अगर बल्क में कोई कमोडिटी है तो हम स्टोर कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? So it was very difficult. So people started using metals. तो कौन से मेटल्स हम यूज करते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज मेटालिक कॉइन्स. Due to scarcity and lack of uniformity of metal pieces, it was resulted into the introduction of metallic coins. Metallic coins are divided into two types: standard coins or full-bodied coins and token coins. क्या होता था कि मेटालिक मनी जो हम यूज करते थे उसका भी कुछ लिमिटेशंस था. तो वो क्या था कि इट वाज नॉट रेडिली अवेलेबल, मतलब उसका स्कैरसिटी था, और देयर वाज आल्सो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्टेन मेटल पीसेस. तो इसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक कॉइन्स. Also, metallic coins are divided into two types. तो कौन से है वो? स्टैंडर्ड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स. स्टैंडर्ड कॉइन्स जो रहते हैं वो हायर मेटल के, मतलब गोल्ड, सिल्वर ऐसे मेटल्स के रहते हैं, और जो टोकन कॉइन्स रहते हैं वो चीपर मेटल्स के रहते हैं, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा. अभी हम जो यूज करते हैं नाउअडेज वो है टोकन कॉइन्स. Now next is paper money. Due to the difficulties in using token coins, it gave rise to paper money. Paper money includes coins and notes issued by government and central bank of the country. अभी इस nowadays we use paper money, जिसमें हम include करते हैं coins as well as notes. लेकिन वो जो coins and notes है वो कौन इशू करता है? The government and the central bank of our country. तो ये हुआ पेपर मनी. नाउ नेक्स्ट है बैंक मनी और क्रेडिट मनी. Difficulties in handling and storing paper money gave rise to the introduction of credit money. Credit money means bank deposits kept in the bank by people. हम जो बैंक में हमारा कैश या तो फिर हमारे पैसे रखते हैं उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट्स. तो वो हुआ बैंक मनी और क्रेडिट मनी. जो स्टोरेज हम घर में नहीं कर सकते वो स्टोरेज हम बैंक में करते हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज डिफिकल्टी इन हैंडलिंग एंड स्टोरिंग पेपर मनी. तो इसके वजह से बैंक मनी में हम हमारे पैसे रख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी. In today's advanced technology, we use debit and credit cards. These are called as plastic money. ये तो हम सबको मालूम है. हम अभी हर जगह डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, तो इसे कहेंगे प्लास्टिक मनी.
Next is electronic money. When monetary value is stored and transferred electronically through variety of means such as smart or mobile phones, smart cards, computers, digital wallets, etc., it is called as electronic money. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी में हम क्या इंक्लूड करेंगे अभी? गूगल पे, जो कि हम फोन से करते हैं, हमारे स्मार्टफोन से करते हैं, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी. स्मार्ट कार्ड्स भी हम यूज करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इससे भी हम ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी. ना आगे नेक्स्ट इज qualities of money. To be considered as money, the money should have the respective qualities. तो कौन से qualities है वो? General acceptability. Money must be easily accepted by all for exchange purpose. Exchange होने के लिए मनी का सब में एक्सेप्टेड होना बहुत जरूरी है. वो सब ने एक्सेप्टेड करना चाहिए, सब ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी. इट शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस सो एज टू कैरी आउट स्मॉल ट्रांजैक्शंस. बड़े ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, छोटे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकते. तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? इट शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस. मतलब अभी हमारे पास 10 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट है, 50 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, 500 रुपीज का नोट है. सो दैट देयर इज स्मॉलर से लेकर बिगर तक हमारे पास डिनोमिनेशंस अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम जब कोई एटीएम से पैसे निकालने के लिए जब कोई भी बैंक एटीएम में जाते हैं तो वहां पे कभी कभी लिखा होता है कि कौन से डिनोमिनेशंस अवेलेबल है एटीएम में, एटीएम मशीन में. तो कभी कभी 500 के होते हैं, 500 के नोट्स होते हैं, 200 के नोट्स होते हैं, 100 रुपीज के नोट्स होते हैं. तो इसे हम कहते हैं डिनोमिनेशंस. So, it should be easily divisible into smaller denominations so as to carry out smaller transactions also. तो ये हुआ divisibility. Now next is durability. It must be durable as currency coins and notes are used repeatedly. ये जो currency coins और notes है वो repeatedly use होते हैं. For example, मैं सब्जी वाले के पास जाती हूँ, उसको 10 या 20 रुपीज का नोट देती हूँ, वही नोट वो किसी और को देगा, वो आदमी वही नोट किसी और को देगा. मतलब ये जो 20 रुपीज का नोट है वो हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं. सो देयर इज ड्यूरेबिलिटी, इसे कहते हैं ड्यूरेबिलिटी. नेक्स्ट है कॉग्निजेबिलिटी. मनी मस्ट बी इजी टू रिकॉग्नाइज एंड हैव डिस्टिंक्ट मार्क to avoid confusion. अभी 10 रुपीज का नोट, 20 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका जो कलर है वो अलग है. देयर इज अ डिस्टिंक्ट कलर फॉर ईच एंड एवरी नंबर. 10 रुपीज के लिए अलग है, 20 रुपीज के लिए अलग है, 50 रुपीज के लिए अलग है, 100 रुपीज के लिए अलग है, 500 रुपीज के लिए अलग है. तो देयर इज कॉग्निजेबिलिटी इन द मनी. सो ये क्वालिटी मनी में होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी. इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without any difficulty, expense and inconvenience. For example, currency notes. Currency notes है वो हम easily पॉकेट में कैरी कर सकते हैं. So it is easily portable. Portable nature हुआ उसका. So it should be easy to carry from one place to another place. तो इसे हम कहेंगे portability. Next is homogeneity.
मनी विथ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन नेचर. उसका एक आइडेंटिटी होना चाहिए. अगर हम 50 रुपीज, अब मैं अगर आपको बोलती हूँ कि 50 रुपी नोट, तो आपके आंखों के सामने 50 रुपी का नोट आ जाता है. तो देयर इज होमोजिनिटी ऑफ 50 रुपी नोट. अगर 100 रुपीज का नोट मैं आपको बोलती हूँ तो आपके सामने 100 रुपीज का नोट आ जाता है. तो हम इसे कहेंगे होमोजिनिटी. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. इट शुड हैव स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू. मनी में कंसिडर करने के लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है. उसका जो वैल्यू है वो स्टेबल रहना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए. तो ये सारे हमने अभी देखे क्वालिटीज ऑफ मनी, और उसके पहले हमने देखे टाइप्स ऑफ मनी. सो विद दिस we will end this session, and in the next session we will continue with the rest of the chapter. So till then goodbye. और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी कमेंट्स के लिए मुझे लिखें in the comment section given below. Till then, goodbye.